हाय फ्रेंड्स, ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट सेशन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आज बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल के. सो 1 2 3 4 5 इट्स रियली वेरी इजी फॉर यू कैन डू इट बाय योर ओन वेज. इन कैपिटल बॉक्स आई विल गिव यू द आंसर ऑल्सो, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. विल स्टार्ट विद द सिक्स्थ न्यूमेरिकल. What is the mole fraction of cinnamic acid in a mixture that is 50% weight urea in cinnamic acid? In bracket, I'll give you the molar mass of urea and cinnamic acid. So by saying or by looking this statement of this numerical, you don't get any given mass. क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर ढूंढना है तो गिवन मास पता होगा तो ही आप मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो. तो read the statement and then we'll start this numerical. So in the statement you are given a 50% weight by weight. So let's assume that 100 gram of mixture are present. So 50% weight by weight means your mixture is made up by this only two component, that is 50 gram of urea and 50 gram of cinnamic acid. So this 50 grams becomes your given mass. So now it becomes really very easy. Next step, number of moles of urea, that is given mass divided by molar mass. Molar mass bracket में दिए हुए हैं, you get number of moles. Number of moles of cinnamic acid, that is given mass divided by molar mass, you get number of moles. Second step, total mole. ये दोनों का sum कर लीजिएगा, you get total mole. And last is mole fraction. So likewise you can solve this numerical number 6. So next we moved on to this numerical number 7. A solution of H2SO4 with molar concentration of 8.010 molar has density is 1.354 gram per ml. What is the molar concentration of solution? Means in statement you are given a molality or molar solution और उसको convert करना है molar में. 7 and 8 न्यूमेरिकल जो है दोनों के दोनों न्यूमेरिकल ऐसे ही है. आइदर मोलर दिया होगा मोलर में कन्वर्ट करना है और मोलर दिया होगा तो मोलर में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 7. अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा यू आर गिवन 8.010 मोलर H2SO4 मीन्स 8.010 मोल H2SO4 पर 1 kg of solvent. Per 1 kg of solvent. So number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Given mass is nothing but number of moles multiplied by mole. Moles यहाँ पे दिए हुए हैं. H2SO4 का molar mass है 98. So number of moles multiplied by 98 you get given mass. Now this is solute mass plus 1000, that is per kg of solvent. That is solvent. So solute plus solvent you get solution 1785.6 gram of total mass. Total mass का मतलब होगा solution का mass. To find out molarity we required a volume of solution in liters. So now density formula, आपको density दी हुई है. Density is equal to mass by volume. Volume is nothing but mass by density. So you are given a given mass divided by density. You can find out volume. Next is formula of molarity. Molarity is nothing but number of moles of solute divided by volume of solution in liter. You can find out the molarity. Likewise, molality and molarity के अंदर density formula आपको यूज करना है. Means अगर आपको molarity ढूंढनी है तो volume को equation का फॉर्म बनाना पड़ेगा. और in terms of molar means molality ढूंढनी है तो आपको मास को इक्वेशन का फॉर्म बनाना पड़ेगा यूजिंग डेंसिटी फॉर्मूला. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 8. A sulfuric acid solution containing 571.4 gram of H2SO4 per liter of solution has density of 1.329 gram per centimeter cube. Calculate the molality of a H2SO4 solution. So now you have to find out molality. Given mass दिया हुआ H2SO4 का and density दी हुई. So let's start the numerical. 1 liter means 1000 ml. तो सबसे पहले क्या करेंगे, density is equal to mass by volume. तो mass is equal to density multiplied by volume. Density दी हुई है, that is 1.329 multiplied by 1000. You can get 1329 gram.
So this is becomes total mass of solution. अब आपको गिवन डेटा में दिया हुआ मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज H2SO4. So this is the total mass of solution माइनस मास ऑफ सोल्यूट. टोटल माइनस सोल्यूट का माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मास. तो सॉल्वेंट का मास माने वाटर का मास. Just because solution is nothing but solute plus solvent, you get solution. So now solution mass minus solute mass, you can get solvent mass. उसको kg में कन्वर्ट कर लीजिए. क्यों? क्योंकि मोलालिटी ढूंढनी है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा mass of solvent in kg. Next, number of moles of H2SO4. This is given mass divided by 98 molar mass. You can find out the number of moles. And molality, that is number of moles divided by mass of solvent in kg. You can find out molality of a solution. So let's start with the numerical number 9. An aqueous solution is prepared by diluting 3.30 ml of acetone in bracket density दी हुई है. Now this first density is given by acetone. Acetone is a solute. It's an organic solvent. बट बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा है एज ए सोल्यूट. सो 3.3 ml जो एसीटोन है उसकी डेंसिटी दी हुई है दैट इज 0.789 ग्राम पर ml विथ वाटर टू फाइनल वॉल्यूम 75 ml. इसको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम बन रहा है वो बन रहा है 75 ml. द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज नाउ टोटल जो सोल्यूशन बना उसकी डेंसिटी दी हुई है दैट इज 0.993 ग्राम पर ml. तो आपको क्या ढूंढना है? मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन. नाउ दिस न्यूमेरिकल इज प्रीटी इजी. यू कैन डू इट बाय योर ओन वेज. मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ एंड गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता हूँ. देन यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय योर ओन. सो न्यूमेरिकल नंबर 9 दैट इज विल स्टार्ट विद द मास ऑफ एसीटोन. सो वंस अगेन अ डेंसिटी फॉर्मूला. मास इज नथिंग बट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. सो वॉल्यूम दिया हुआ दैट इज 3.30 ml. उसी के बाजू में ब्रैकेट में दी हुई है डेंसिटी दैट इज 0.789. सो यू गेट मास ऑफ एसीटोन. सेकेंड स्टेप उसी का मोल फाइंड आउट कर लीजिए. गिवन मास डिवाइड बाय एसीटोन का मोलर मास है 58. एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3. दैट इज फॉर्मूला ऑफ एसीटोन. सो यू कैन कैलकुलेट बाय मीन्स ऑफ फॉर्मूला. सो दैट इज गिवन given mass divided by molar mass, you get number of moles. Next is mass of solution. Mass of solution के लिए total volume solution का कितना है? 75 multiply by its density. तो mass बन गया 74.475 ग्राम. That is your mass of solution. And next is mass of water. Solvent का mass कितना होगा? Solution का इतना है माइनस सोल्यूट का इतना है. तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट करोगे तो सॉल्वेंट का मिल जाएगा. मैसेज मीन्स वाटर का मास मिल जाएगा. वंस अगेन मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किया. 75 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दी हुई है. सो यू कैन गेट मास ऑफ सोल्यूशन. सो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे है माइनस मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे है एसीटोन का. तो सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस करोगे तो आपको सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा. मीन्स मास ऑफ वाटर इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. यू कैन फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्वेंट. इसको केजी में कन्वर्ट कर लो. क्यों? क्योंकि मोलालिटी में यूज होगा. एन ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज गिवन मास divided by molar mass. You can find out the number of moles. Now numerical is pretty easy. You can find out molality. Put all this value above reduced value को आप यूज कीजिए एंड मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन खुद से ढूंढ सकते हैं. सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है एंड यू कैन पुट इट दिस. मोलालिटी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो दिस बिकम्स योर kg. नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोलारिटी में वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम 75 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 0.75. ये केजी में किया हुआ है, ये इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा दैट इज 0.075. एंड दोनों के मोल ढूंढे हुए हैं तो आप मोल फ्रैक्शन पे ढूंढ सकते हो. सो 15 कर रहे हैं हम. एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला थोड़ा टाइम पहले किया होगा तो शायद आप भूल चुके होंगे, तो एक बार ब्रशअप कर लेते हैं.
कैफीन हैज़ एलिमेंटल एनालिसिस, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिए हुए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन. इट हैज़ अ मोलर मास ऑफ 194.19 ग्राम पर मोल. 0.19 को आप इग्नोर कर सकते हो, दैट इज 194 आप मोलर मास ले लीजिएगा. फाइंड आउट मोलिकुलर फॉर्मूला. तो यहाँ पे आप EF एंड MF ढूंढना है. अकॉर्डिंग टू डेटा यू आर गिवन मोलिकुलर वेट, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. तो वंस अगेन कॉलम प्रिपेयर कर लीजिए. इन कॉलम में फाइंड आउट करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दिस आर द गिवन परसेंटेज. दिस आर द एटॉमिक वेट. Carbon 12, hydrogen 1, oxygen 16, nitrogen 14. Now this divided by this, that is your column number 4. We get the rough ratio. Means this divided by this you get 4.12, 5.19, 1.02, 2.06. Lowest among this column that is 1.029. उससे पूरी कॉलम को डिवाइड करना है. रफ रेशियो के अंदर हमने क्या याद रखा था? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रफ रेशियो पूरी कॉलम को उससे डिवाइड करना है. So 4.123 divided by 1.029, 5.19 divided by same 1.02 and this. So what we get? We get 4, 5, 1, 2. Means 4 carbon, 5 hydrogen, 1 oxygen and 2 nitrogen. So empirical formula N is equal to molecular weight. Empirical formula बन रहा है C4H5ON2N is equal to 194. Let's find out the molar mass. Carbon 12 4 are 48, 5, 16, 28, so we get 97. 97 N is equal to 194, तो N is equal to 2. So empirical formula आपका बन जाएगा same, that is C4H5ON2 and molecular formula बन जाएगा C8H10O2N4. So this is a quick brush up of your empirical formula and molecular formula. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जामिनेशन कंसर्न. तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिए. So we moved on to the 17, 18 and 19. This is really very easy. You can do it by your own ways. मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ. 5 ग्राम शुगर dissolved in 25 ग्राम of water. What is the percentage weight by weight concentration of sugar? तो आपको percentage weight by weight ढूंढना है, सिंपल. Next we have 450 ग्राम of NaCl having 35% weight by weight NaCl. What mass of NaCl is needed? तो आपको यहाँ पे given mass ढूंढना है NaCl का. And 19th is percentage volume by volume ढूंढना है. Wine has amount 12 ml of alcohol per 100 ml of solution. Wine would have the following percentage volume by volume. So तीनों न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है. मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दे देता हूँ, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा. Hope you remember the formula of percentage weight by weight. So this is the solution. 17 simple percentage weight by weight के अंदर आप वैल्यूज रख दीजिएगा. 5 ग्राम गिवन डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन है, तो दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 100 यू कैन गेट 20%. नेक्स्ट हो जाएगा 18 वेट बाय वेट, x डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100 यू कैन गेट. स्मॉल करेक्शन इन 17 प्लीज चेक कर लीजिएगा. परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन होता है. सो दैट वुड बिकम 25 प्लस 5 दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 100 यू गेट 16.66. सो मेनी टाइम स्टूडेंट मेक दिस सच काइंड ऑफ मिस्टेक. 25 इज ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मास, हमें टोटल मास लेना है. सो 18 ऑन बोर्ड. परसेंटेज वेट बाय वेट आपको गिवन मास मीन्स न्यूमरेटर ढूंढना है. x 35 वेट बाय वेट दिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है. यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस. 19 इज ऑल्सो ईजी, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सिंपल यू गेट 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. सो इन दिस सेशन बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल हमने चेक किए हुए हैं. रिमेनिंग न्यूमेरिकल वर्कशीट मैं आपको सेंड कर दूंगा. वर्कशीट आप चेक कर लीजिएगा एंड न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. सो होप यू एंजॉय दिस सेशन.